Good morning, students. Today once again we will start with problem solving. Only now we will not solve for the alternate current. So today we will solve the problems for your topic electromagnetic induction, because it is there for your major test. So today I will solve the problem for electromagnetic induction. Tomorrow, if possible, I will go to solve the problems for magnetism also. Okay. So today we will select the topic first, electromagnetic induction. So for that purpose, you refer whatever the sheet is given to you. Sheet is given to you like this. This sheet will be given to you. So PDF you open and I will start with the problem. So first problem number 1. What they are asking, in electromagnetic induction, the induced charge in a coil is independent of. So induced charge. So the formula is given to you. Okay. So induced charge Q is equal to phi 2 minus phi 1 upon R, and minus it is there. How it comes, I have explained you how it comes. Actually I is equal to dq by dt. So dq will be I dt. Are you getting my point? And I, how we can find out? That also you know. I is equal to E upon R. So I is equal to E upon R. Okay. And what is E? Minus d phi by dt upon R into dt. So of course it will be remain minus d phi upon R dq. So the same induced charge, instead of dq I have used q. So d phi means your phi 2 minus phi 1. So now here phi is not phi, here q is depending on number of flux changing and the resistance. So is independent of change in flux? No, it is depending on change in flux. Second is resistance in the circuit, it depends on resistance. None of the above, it is not like that. Time taken to change the flux, there is no time factor here. So as q is equal to phi 2 minus phi 1 upon R, that is minus d phi by R. Q is independent of T. So your option will be option number B. So I will suggest you to note this down. Let's go for the next problem, problem number 2. Okay. So in problem number 2, magnet is brought towards coil speedily and slowly. Then induced EMF charge, okay, induced EMF or induced charge will be respectively. Of course, rapidly will be more, you know that, and slowly will be less. I told you, because it depends on the movement, how rapidly or how slowly you are moving the magnet towards or away from the coil, whatever it is there. So of course more in first case or equal in both cases. Okay. Now then induced EMF, induced charge. Okay. Induced EMF will be more, and now induced charge is independent of time, so induced charge will be equal. So induced EMF will be more in that case, and equal kya? Induced charge. So induced charge will be independent of time, so it will be equal in both. So your option number B is correct option. Let's go for the next problem, problem number 3. I'll suggest you to note this down if you want. Nothing I have given. A coil of area 10 centimeters square and 10 turns. So area given is 10 centimeter square. N is given 10. Okay. Directed perpendicular to the plane. Field is directly perpendicular to the plane. And it is changing at the rate of 10 raised to 8 Gauss per second. The resistance is
Okay, 20. Okay, the current in the coil. So field is changing at the rate of. Okay. So d phi by dt will be 10 raised to 8 Gauss per second. Gauss per second. Okay. And the resistance is given 20 ohm. So induced current I is equal to E upon R. E is equal to minus d phi by dt upon R. So I will be d phi by dt, so 10 raised to 8 upon, but here number of turn also given, na? So it is better to go with like this. So we will write once again problem number 3 so that you will not be get jumbled. So friends, let's go for problem number 3. In problem number 3 is given a coil of area 100 centimeter square, sorry 10 centimeter square. So 10 into 10 raised to minus 4 meter square. 10 turns, n is equal to 10. With a magnetic field directed perpendicular to the plane is changing at the rate of, matlab dB by dt is given 10 raised to 8 Gauss per second. Now we have to convert it into the Tesla per second. So 10 raised to 8 into 10 raised to minus 4 करने का इसको. 1 Gauss is 10 raised to minus 4. 1 Tesla is 10 raised to 4 Gauss. So Gauss will be 10 raised to minus 4 Tesla per second. So why we are doing that, I will explain you later. Now the coil is kept like this. So this plane is perpendicular to the magnetic field. So area vector will be parallel to the magnetic field. So theta will become 0. So cos theta will be cos 0, that will become 1. So now if you go to calculate current is asked, na? So what R is given 20 ohm and I is asked. So I अपना कितना आता है, I will be E upon R, induced EMF. E कितना आता है आपका, E minus d phi by dt upon R. Now phi is given as NBA cos theta. If the phi is given as NBA cos theta, then beta for the given value d phi by dt, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, cos theta ये आएगा 1, तो ये आएगा dB by dt. खाली डेरिवेटिव ऑफ b with respect to time if we will take, d phi by dt will become this. So d phi by dt का वैल्यू निकाल के लेते हैं. n कितना है अपना 10 into 10 into 10 raised to minus 4, और ये dB by dt कितना दिया आपको 10 raised to 8 into 10 raised to minus 4. तो ये पक्का अपना ये क्या हो गया, ये और ये चला गया, -4 ये चला गया, ये चला गया. अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है. ओके, तो यहाँ पे कितना बच गया है बेटा, 10 10 100, ये तो कट गया. ओके, सो d phi by dt कितना बन गया अपना, d phi by dt अपना बन गया 100 बन गया. ओके, तो अभी I कैसे लिखेंगे, हाँ I कैसे लिखेंगे, ये डायरेक्टली -100 upon 20. ओके, और 100 NBA लिखा था ना, तो 10 into 10 raised to minus 4, ये -4 और ओके -8 हो जाएगा, ये 100 हो गया. ओके, 100 upon 20 ये बन गया -5. So magnitude of current will be 5 ampere. So your option will be, I think, A option will be correct. Okay, correct. So I will suggest you to note this down. Let's go for the next problem. Okay, प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए जाते हैं. ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया है, अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10 raised to minus 2, मतलब डिवाइडेड बाय 100 किया तो आपको 0.1 मिला मीटर का. ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच, एरिया कितना हो जाएगा 0.1 ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब 0.01 मीटर स्क्वायर. ओके, हाँ 500 स्क्वायर लूप्स. ओके, n कितना लिया है आपको 500 दिया है ना बेटा.
is placed normal to a magnetic field. Normal को place किया है मतलब area vector will be, so coil is perpendicular to magnetic field, therefore theta कितना आएगा, theta will be 0, pi by 2 नहीं आएगा, area vector का theta means area vector and magnetic field angle, ये कितना बन जाएगा 0, तो cos 0 cos theta cos 0 1 आएगा. ओके, और क्या पूछ रहे हो, magnetic flux which increases at the rate of 1.0 Tesla per second. So d phi by dt is equal to 1.0 Tesla per second is given. Okay, the induced EMF. तो इधर बाकी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बाकी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे induced EMF E is equal to minus n d phi by dt करने का. n तो दिया है 500 बराबर, लेकिन यहाँ पे ये जो दिया है टेस्ला पर सेकंड दिया है ना बेटा, टेस्ला पर सेकंड में दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स विच इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, मतलब आपको यहाँ पे भी आपको क्या दिया है, dv by dt दिया है, ये आपको पता करने का है. वो देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी फिर से फाई निकालो. फाई कितना, n b a cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा 1 आएगा, ये आ गया 1. ओके, तो d phi by dt कितना आ गया, जैसे मैंने अभी किया था n इंटू a इंटू dB by dt. तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे डालने का, तो यहाँ पे n लिखने का जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया. ये बन गया माइनस यहाँ पे n a इंटू dB by dt. तो ये कितना पूरा बन गया, n तो मेरा 500 है, a मेरा कितना है बेटा 0.01 है, इंटू dB by dt कितना दिया है 1.0. तो ये कितना आ रहा है, देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो ये देखो 0, ये 2 गए ना, 2 इंटू 1, ये मतलब -5 वोल्ट. तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF कितना आएगा 5 वोल्ट. तो अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आएगा ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5. ओके बेटा, तो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या दिया है बेटा, a coil having area 2 meter square. Okay, so we'll start with that. Okay, problem number 5. Coil having area 2 meter square, A दिया है 2 meter square, is placed in magnetic field which changes from, so B1 कितना आएगा 1 Weber per meter square to B2 कितना दिया है 4 Weber per meter square, 4 Weber per meter square in interval of t दिया है 2 सेकंड. ओके, इट्स वेरी सिंपल. तो E कितना आएगा, इंड्यूस्ड EMF पूछा है ना, इंड्यूस्ड EMF आपका कितना आएगा, इंड्यूस्ड EMF निकालने के लिए वंस अगेन d phi by dt करेंगे. तो phi कितना आएगा, phi विल बी NBA cos थीटा, cos थीटा यहाँ पे फिर से 1 करेंगे NBA आएगा, तो d phi by dt कितना आएगा, फिर से अपना वही सेम फॉर्मूला NA इंटू dB by dt. n कितना दिया है, हाँ यहाँ पे dB by dt निकालने से अच्छा है हम क्या करेंगे, NA इंटू B2 माइनस B1 अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना दिया है 2 सेकंड दिया है. तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वेट फॉर व्हाइल, तो यहाँ पे आएगा सो d phi by dt कितना आएगा आपका n कितना दिया है, n कॉइल का ये कितना है, कॉइल सिंगल है तो n ले लेंगे 1, n आएगा 1. एरिया कितना दिया है 2 मीटर स्क्वायर. ओके, इनटू B2 कितना दिया है 4 माइनस 1 अपॉन 2. तो ये कितना आ गया, ये 2 को ये 2 ने काटा, 4 माइनस 1 3, सो ये कितना आएगा 3. आंसर विल बी 3 वोल्ट. इट्स देयर, answer is 3 volt. So check your answer, okay, and I will suggest you to note this down. Now let's go for the problem number 6. Now in problem number 6 क्या दिया है बेटा, पहले इसको ये नोट डाउन पूरा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको दिया है कॉइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस 100 टर्न्स एंड रेडियस 6 मिलीमीटर. कॉइल ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस इज 40 ओम, टर्न्स दिया है 100. ओके, रेडियस r दिया है 6 mm.
is connected to ammeter of resistance of ammeter. resistance of ammeter कितना दिया है 160 ohm. Coil is placed perpendicular to the magnetic field. When the coil is taken out of the magnetic field, 32 microcoulomb charge flows through it. So Q is 32 microcoulomb. Okay. The intensity of magnetic field will be. Okay. तो now यहाँ पे intensity of magnetic field आपको अगर करना है तो पहले आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है रेजिस्टेंस दिया है, N दिया है, R दिया है, Q दिया है. Q को मतलब ये क्या करने का, ये आपको दिया, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड चार्ज. तो इंड्यूस्ड चार्ज से आप डेल्टा फाई लिख सकते हो. मतलब डेल्टा क्यू क्या फॉर्मूला क्या है बेटा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर. ओके. और ये इसको फाई पकड़ने का और ये फाई लेके, ये जो डेल्टा फाई आएगा इस फाई को लेके उसको इक्वेट करो NBA. तो मेरा B कितना आएगा, B विल बी फाई अपॉन NB. B कितना आएगा, फाई अपॉन NB. आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन विल डू दैट. ओके. नाउ देखो ये क्या हो जाएगा. अभी यहाँ पे कितना दिया है, चार्ज दिया है माइक्रोकूलम. अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले फाई पकड़ के लेते हैं. तो फाई कितना आएगा, तो डेल्टा क्यू दिया है, डेल्टा क्यू 32 दिया है और आर दिया है आपको 160. तो करके लेते हैं अभी. तो देखो भाई यहाँ पे क्या दिया है आपको. हाँ, तो पहले डेल्टा फाई निकलते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई और फाई विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू आर. डेल्टा क्यू कितना दिया है आपको, डेल्टा क्यू दिया है 32 इंटू 10⁻⁻⁶. आर कितना दिया है 40. तो ये कितना होगा 1280 इंटू 10⁻⁻�6. तो ये फाई कितना आएगा, ये आएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻3. ये बन गया. अभी इसको इक्वेट करने का यहाँ से यहाँ. सो B विल बी इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन n कितना दिया है बेटा आपको, n दिया है 100 दिया है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय अभी ये कितना आएगा, NB नहीं सॉरी NA है, सॉरी एरिया. अभी एरिया निकल के लेते हैं. एरिया विल बी, कौन सा प्लेट है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस. कॉइल मतलब उसको सर्कुलर लेने का. पाई आर स्क्वायर. तो आर कितना दिया 6. सो पाई इंटू 6 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये आएगा 36 पाई इंटू 10⁻⁶. तो ये कितना आएगा 36 पाई इंटू 10⁻⁶. तो यहाँ पे -6 और ये 100 मतलब -4 बन गया. 1.28 इंटू 10⁻³ अपॉन 36 पाई इंटू 10⁻⁴. तो ये -4 ऊपर जाएगा, +4 जाएगा, ये 10 बन जाएगा. तो ये बन जाएगा 12.8 अपॉन 36 पाई. ओके. अगर ये आपने कैलकुलेशन किया तो आपका कितना आता है 0.566. सो 0.566 टेस्ला आएगा आपको. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. ओके. नाउ we'll go for the problem number 7. प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या दिया है बेटा, वो थोड़ा देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको दिया है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. ओके. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय phi is equal to 3t square plus 4t plus 9. Then the magnitude of induced EMF at EMF at t is equal to 2 सेकंड. बताने का जरूरत ही नहीं आपको मालूम है कैसे निकालना है. बेटा कैसे निकालना है, हाँ, E is equal to minus d phi by dt. तो E कितना आएगा, माइनस मतलब उसका, हाँ, तो अभी मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये खाली d phi by dt. तो इसका क्या करते हैं, d by dt ऑफ, इसका d by dt निकालते हैं 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9. अभी इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर
3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 4 इंटू t का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, तो 3 टू जा 6t, ओके 6t प्लस 4 आएगा। अगर ये 6t प्लस 4 आ रहा है, देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड कितना आएगा, देयरफॉर e इज इक्वल टू 6 इंटू 2, हाँ 6 इंटू 2 प्लस 4, so 6 to the 12 plus 4, 16 volt. Let me check the answer. Yeah, 16 volt it is coming. So now we'll go for the problem number 8. I hope you have understood this. I will suggest you to note this down. इसको note down करो. Okay. Problem number 8. प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दे, कॉइल हैज एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर, एरिया इज 0.05 मीटर स्क्वायर, ओके एंड इट हैज 800 टर्न्स, इन दिया है 800 और क्या, इट इज प्लेस परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा कितना दिया है, थीटा 0 दिया है, मतलब cos 0 1 आएगा आपका, स्ट्रेंथ B दिया है आपको 4 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, इट इज रोटेटेड थ्रू, ओके थीटा, इसको थीटा 1 ले लो, इसको थीटा 2 करो, 90 डिग्री एंड t इज इक्वल टू 0.1 सेकंड, द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल, एवरेज इंड्यूस्ड EMF एकदम सिंपल है, कैसे करेंगे, phi 1 कैसे आएगा, n b a cos थीटा 1, क्योंकि पहले ये ऐसा था, ये ऐसे था पहले कॉइल, ये कॉइल ऐसे था, तो एरिया वेक्टर ने कितना एंगल किया, थीटा इज इक्वल टू 0, हाँ यहाँ पे, और अगर मैंने कॉइल को रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, तो अभी एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, तो अभी ये एंगल बन जाएगा, सो थीटा 2 विल बिकम π/2, तो ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, तो ये अगर ऐसे करेंगे तो phi 2 कितना बन जाएगा, NBA cos थीटा 2, ओके सो अभी आपको क्या पूछा है, they have asked you, 1 minute, let me check the time also, okay no problem, so what they have asked average EMF induced in the coil, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, E will be d phi by dt, मतलब यहाँ पे ले लेंगे d डेल्टा phi by डेल्टा t तो आपको दिया है 0.1 सेकंड, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, NBA cos थीटा, हाँ और कॉइल का क्या किया है, इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, कॉइल रोटेट किया है 90 डिग्री में, तो एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन 0.1, इसको करते हैं, अभी n कितना दिया है, n दिया है 800, b कितना दिया है 4 इंटू 10⁻⁵, a कितना दिया है 0.05, cos थीटा 2 cos 0 cos 90 0 आएगा, माइनस, हाँ और यहाँ पे ये माइनस आएगा ना, माइनस d phi by dt वो आएगा, माइनस ये कितना आएगा, cos थीटा 1 आएगा अपॉन 0.1, तो यहाँ पे हम आंसर चेक कर लेते कितना है वो, ओके पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 8 इंटू 10⁻² लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4 इंटू 10⁻, ये -5 और 0.05 इसको लिखते हैं 5 इंटू 10⁻² इंटू ये -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1, तो ये -5 हो गया, -2, ये -7 हो गया और ये -1 ऊपर आके +1 हो गया, सो -6 हो गया, ओके और ये 2 मतलब ये -4 हो गया, नाउ 8 5 जा 40, 44 जा 160 इंटू 10⁻, ये 0.1 लिखा ना, नहीं ये 0.1 ऊपर वाला है, 10⁻⁻4, तो ये कितना बन जाएगा, तो E मेरा कितना बन जाएगा 160 इंटू 10⁻⁴, मतलब ये 1 2 3 और एक 0, so 0.016 volt, so let me check my answer, my answer is coming out to be 0.016, okay correct, so I'll suggest you to note this down.
Okay, now let's go for the next problem. Problem number 9. तो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या दिया है बेटा? प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको दिया है in a magnetic field of 0.05 Tesla, area of coil changes from A1 101 centimeter square, A2 100 centimeter square. मतलब ये कितना बन जाएगा? 101. ठीक है, बाद में करते हो. Without changing the resistance R, which is 2 ohm. Okay, the amount of charge that flows during this period. It's very simple. Okay, क्या करने का? आपको अभी एरिया चेंज किया है, तो आपका डी फाई कैसे बन जाएगा? डेल्टा फाई कितना बन जाएगा आपका? फाई 2 माइनस फाई 1. अभी थीटा चेंज नहीं किया है, कॉइल का थीटा वही रखा है, लेकिन कॉइल का एरिया चेंज किया है. सो फाई इज इक्वल टू एन बी ए, सो फाई विल बी प्रोपोर्शनल टू ए. सो कैसे आएगा? यहां पे कैसे आएगा? डेल्टा फाई विल बी फाई 2 एन बी A2 माइनस एन बी A1. तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई अपना एन बी इंटू A2 माइनस A1. तो ये कितना हो जाएगा? एन कितना दिया है? एन 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 आपका कॉइल का दिया है आपको ना एरिया. तो मतलब यहाँ पे आपको कॉइल का एरिया सॉरी N1 देने का, N1 दिया है तो 1. ओके, B कितना दिया है? 0.05, A2 100 माइनस 101. ओके, डिक्रीजेस बोले कि इंक्रीजेस? चेंजेस फ्रॉम बोले, बराबर है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. चेंज हो रहा है तो ठीक है. तो डेल्टा फाई कितना हुआ? डेल्टा फाई हुआ आपका 0.05 मल्टीप्लाइड बाय ये -1 हो जाएगा, मतलब -0.05. ये हो गया आपका. तो डेल्टा फाई मिल गया आपको. तो इंड्यूस चार्ज निकालने का माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर. तो -0.05 अपॉन आर कितना है? 2. तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10. सो डेल्टा क्यू विल बी कितना आ रहा है देखो, 2 × 2.5. अरे यार, यहाँ पे कुछ तो मैंने गड़बड़ किया. डेल्टा फाई 0.05 किया ना? अरे हाँ, सेंटीमीटर टू मीटर करना भूल गया मैं ना. सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना? हाँ, तो एरिया यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ठीक से लिख के लेते हैं. ये बन गया, ये 100 सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 101 इंटू 10⁻⁻4. यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁻4. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. क्या हो जाएगा? -1 इंटू 10⁻⁻4 आएगा. सो यहाँ पे इंटू -1 इंटू 10⁻⁻4. तो ये कितना बन गया आपका? तो 0.00. हाँ, तो अभी इसको ठीक से देखना पड़ेगा. तो ये कितना बन जाएगा? ये क्या करते हैं? 5 करते हैं इसको. 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 2, मतलब 10⁻⁻2, और ये -4 मतलब 10⁻⁻6. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2. 5/2 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. तो 2.5 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं. 2.5 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है आपका आंसर आ रहा है. ओके, सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. Now we'll go for the next question, that is question number 10. Let me check the time also. Okay, ठीक है, that's all. So now let's go for question number 10. तो question number 10 में आपको क्या दिया बेटा? देखो, current of 10 ampere changes in 1 second, t is equal to 1 second, through a coil, and induced EMF E is equal to 10 volt. Then self inductance. अरे ये एकदम सिंपल है, इसका करने में कुछ नहीं है. सेल्फ इंडक्टेंस L is equal to E upon di by dt. So L is equal to 10 upon I कितना है? 10.
10/1, so L will be 1 Henry. 1 Henry आ रहा है, एकदम simple है. So I'll suggest you to note this down. Afterwards we will go for the problem number 11. Okay. So friends, let's go for problem number 11. In problem number 11, the resistance and inductance of series circuit R is given 5 ohm and L is given 20 Henry. At the instant of closing the switch, the current is increasing at the rate of di by dt is given 4 ampere per second. The supply voltage is V is equal to question mark. Okay. So, okay. Di by dt how we can write? Then I is given, one equation is given, I is equal to I naught into 1 minus e raised to RT upon L. This is the formula for transient circuit. I naught into 1 minus e raised to minus is plus 1 minute, na? Changing it is na? Yes, it is minus, correct. Minus RT upon L. तो यहाँ पे di by dt you can do. So you can differentiate I di by dt. तो यहाँ पे di by dt will be differentiation of this. So now what will happen? Your di by dt will become I naught will be inside. So I naught, let me write again, d by dt of I naught minus I naught e raised to minus RT upon L. तो I naught का सिंपल में 0 हो जाएगा, माइनस I naught इंटू e raised to का डेरिवेटिव उतना ही रहेगा, e raised to माइनस RT अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस R अपॉन L. बराबर. तो पूरा कितना हो गया? di by dt. ओके. और आपको क्या पूछा है उन्होंने? आपको उन्होंने पूछा है सप्लाई वोल्टेज आपको पूछा है. ओके. तो नो प्रॉब्लम. आपको ये दिया है, ये RL दिया है. एक मिनट ना, एक मिनट. रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आर गिवन, क्लोजिंग करंट इज ओके. तो L di by dt से हम कर सकते हैं, L di by dt से कर सकते हैं. तो यहाँ से L तो दिया है, di by dt निकाल, di by dt भी निकाला है ना, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. एक मिनट ना, करके देखते हैं. L इंटू di by dt इज इक्वल टू 20 इंटू 4. ओके, आ गया, डायरेक्टली आ गया. 80 है ना आपका, 80 वोल्ट. तो ये करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आएगा. L E इज इक्वल टू L di by dt. नो प्रॉब्लम. सो डायरेक्टली आपका 80 वोल्ट आ सकता है. ओके. सो दैट वाज द थिंग. Now we'll go for the next problem. Okay. Problem number 12. So what is given in the problem number 12 that we will look for? Problem number 12, what is given? The number of turns. The number of turns in the coil of an AC generator is 5,000. And area of the coil is A is given as 0.25 meter square. The coil is rotated at the rate of 100 cycles per second. Okay. In the magnetic field of, मतलब frequency दिया है, frequency F 100 cycles per second, मतलब F will be 100 hertz. Okay. In a magnetic field of 0.2 Weber per meter square. तो B दिया है 0.2. Peak value of EMF. Okay. तो EMF कैसे लिखते हैं? E is equal to E naught sin ओमेगा t. और E naught का वैल्यू मैंने आपको दिया था जनरेटर के लिए. E naught will be NBA ओमेगा. तो यहाँ पे F दिया है, F से ओमेगा कैसे आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F. सो 2 इंटू 100 इंटू पाई.
तो कितना बन जाएगा 200 पाई। तो ई नॉट कितना बन जाएगा एन है 5000 मल्टीप्लाइड बाय बी कितना है 0.2 इंटू एरिया 0.25 इंटू 200 पाई। तो अभी क्या करते हैं 25 टू 50 है ना, 1 2 3 मतलब यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, तो ये 5000 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5000, यहाँ पे 0.5 इंटू 200 इंटू पाई। सो 5 5 25, ओके 1 2 3 एक ये पॉइंट है, मतलब 2500 इंटू 200 इंटू पाई। 25 टू 50, 1 2 3 4 इंटू 10⁴ इंटू पाई। अभी आंसर चेक करके लेते हैं, मतलब अपन को कितना आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अब इसको करवा के लेते हैं। ये 5 पाई इंटू 10⁻, एक और यहाँ पे बढ़ गया 10⁵ मिल जाएगा। 5 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे इतना कितना बन जाएगा, ई नॉट विल बी 5 4 20, 2 कैरी 5 5 प्लस 2 7, 5 3 15, 1 2 ये 2 हो जाएगा 15.70 इंटू 10⁵, 15.70 इंटू 10⁵। तो ई नॉट कितना बन जाएगा बेटा, ये आंसर कितना है अपना 157 ना। तो ठीक है 157 इंटू कितना हो जाएगा, ये आगे चला गया 10⁻, एक मिनट, हाँ ये 4, ये कितना किलो, हाँ तो एक 4 बन जाएगा, लेकिन मेरा तो 0.2, हाँ तो यहाँ पे 10⁻⁴ है ना, अरे हाँ ये 5 बन गया, ओके। तो यहाँ पे कहीं तो भी 1 2 3 यहाँ पे 25 टू हाँ 0 पॉइंट, अरे हाँ यहाँ पे 0.05 आएगा, बराबर बराबर बराबर। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बराबर है बराबर, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बराबर है। ये 3 मतलब किलो, तो ई नॉट विल बी 157 किलो वोल्ट। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू note this down. Now let's start with problem number 13. In problem number 13, what is given? Two coil have mutual inductance. Mutual inductance is given 0.005 Henry. The current changes in the first coil according to equation I is equal to I naught sin omega t, where I naught is given 10 ampere, omega is 100 pi rad per second. EMF का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF. ओके, दैट्स वेरी सिंपल. सो वी नो दैट EMF इंड्यूस्ड विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू DI बाय dt. I कितना दिया है बेटा, I नॉट sin ओमेगा t. Therefore DI by dt will be I नॉट कॉमन sin का cos ओमेगा t इंटू ओमेगा डी का डेरिवेटिव ओमेगा. सो डी आई बाई डी टी कितना आएगा बेटा, डी आई बाई डी टी आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ओके, अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन. तो यहाँ पे इसको लिखेंगे आई नॉट ओमेगा. तो यहाँ पे अभी अपना ई कितना बन जाएगा, ई एम इंटू आई नॉट ओमेगा. एम कितना दिया है यहाँ पे लिखते हैं 0.05 इंटू आई नॉट 10 एम्पियर दिया है इंटू ओमेगा 100 पाई. तो ये 1000 हो गया, ये इंटू 0.5, सो मतलब 50 पाई. सो 50 इंटू 3.142 5 0 लेते हैं 20, 5 प्लस 2 7, सो 157. अभी देखते हैं हाउ मच इज द आंसर. ओके, ओ यहाँ पे 5 पाई दिया है ना, एक मिनट ना चेक करते हैं हमने कहाँ गलत किया है. अरे यहाँ यस सॉरी, यहाँ पे 0.05 आई नॉट कितना, आई नॉट 10 ओमेगा 100 पाई. अभी करो ये 10 100 ना बराबर है. अरे हाँ मैं इधर 0.05 लिखा, ये देखो 1 2 3 5 पाई बराबर.
It is coming 5 pi, no problem. Okay, now we'll go for the problem number 14. Okay, what is problem number 14? Let me check it. Problem number 14 में दिया a rectangular coil rotates about an axis normal to the magnetic field. If EM is the maximum value of induced EMF, the instantaneous EMF when the plane of the coil makes angle 45 with the magnetic field. Okay, so हाँ ये तो डायरेक्ट आएगा 45 ना, तो ये cos 45 देखने का, ये cos 45 कितना 1/√2 आएगा, तो ये आएगा EM अपॉन √2, ये आएगा आपका ऑप्शन, ये डायरेक्टली कर सकते हैं, ये देखने का जरूरत नहीं है. 14 नंबर डायरेक्टली 1/√2 EM. नेक्स्ट वन 15 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म. 15 को नंबर उधर दिया नहीं है, थोड़ा पेज आया था उधर, वो आप 15 उसको देखो. कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B टेस्ला विद अ प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड. ओके, थीटा अपना 0 आएगा, मतलब प्लेन नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर 0 आएगा. नाउ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ dr/dt. सो dr/dt rate of decrease of radius, shrinking बोले ना, decrease of r. Then the induced EMF at the instant when radius is r. Okay, E is equal to d phi by dt. phi कितना कैसे देंगे, n नहीं देने का अभी, b into a. लेकिन a कैसा है मेरा, a है मेरा, a कितना दिया है, a दिया है पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर d, अभी यहाँ पे अगर ये पूरा कर लेते हैं, इसके पहले d phi by dt कैसे निकालेंगे, d phi by dt. तो यहाँ पे रेडियस चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखने का इनटू dA by dt. ओके, तो dA by dt कितना लिखेंगे, 2 pi r, कितने r स्क्वायर का dt 2r, सो 2 pi r इनटू dr by dt. तो यहाँ पे d phi by dA by dt कितना आएगा, dr by dt. तो 2 pi r इंटू dr by dt दिया है आपको, dr by dt कितना दिया है आपको, dr by dt दिया है, dr by dt ही लिखा है उसका, बराबर. सो 2 pi r dr by dt, तो 2 pi r b आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर. तो यहाँ पे ये आ गया, इसको यहाँ पे डाल दो तो आपका d phi by dt मतलब आपका इंड्यूस्ड EMF कितना बन जाएगा, ये 2 pi r b इंटू dr by dt. सो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 16. यहाँ पे ही कर देता हूँ. ओके, प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या दिया बेटा, देखो जरा, वी विल चेक व्हाट इज गिवन इन प्रॉब्लम नंबर 16. कॉइल हैविंग एरिया A नॉट, एरिया कितना दिया है आपको, एरिया A नॉट दिया है. इट्स प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच चेंजेस फ्रॉम, ओके, तो B1 कितना दिया है, B नॉट, और B2 कितना दिया है, 4 B नॉट, एंड टाइम दिया है आपको, T दिया है. द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इट्स वेरी सिंपल. EMF कैसा, d phi by dt. तो यहाँ पे phi कितना आएगा, phi BA. यहाँ पे cos थीटा वगैरह वो नहीं लेने का, डायरेक्टली लेने का. अगर वो BA आ गया, देयरफॉर d phi by dt कितना आएगा, वैसे ही जैसे अभी किया A इंटू dB by dt. यहाँ पे एरिया चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लिखने का. तो ये कितना बन जाएगा, A इंटू B2 माइनस B1 अपॉन T. तो देयरफॉर E विल बी d phi by dt माइनस वो हो जाएगा, माइनस इसको करते माइनस d phi by dt माइनस ऑफ A कितना, A नॉट, और B2 4 B नॉट माइनस B नॉट अपॉन T. तो ये आपका ऑप्शन है क्या, देखो, A नॉट इंटू 4 माइनस 1 3, सो 3 A नॉट B नॉट अपॉन T. ये माइनस साइन मतलब वो अपोज कर रहा है इसलिए वो, अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच ऑफ. ओके, 3 A नॉट B नॉट अपॉन T. सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16. अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. मैं ये आपको पूरा क्यों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज फॉर यू पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आपने देखा है, अगर एरिया हमने चेंज किया
तो dA by dt लेते हैं, मतलब A2 माइनस A1 लेते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो dB by dt लेते हैं। मतलब हर टाइम आपको d phi by dt कैसे निकालने का है, वो phi इज इक्वल टू BA, कभी कभी NBA लेते हैं, कभी कभी NBA cos theta लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हाउ वी विल चेंज, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। ओके, नाउ अभी लेते हैं 17. A physicist work in a laboratory where the magnetic field is 2 Tesla. Question number, problem number 17. Problem number 17. Magnetic field is given as कितना दिया है, 2 Tesla. She wears a necklace of enclosing area दिया necklace का enclosing area 0.01 meter square. Such a way that the plane of the necklace is normal to the field. मतलब ये अगर प्लेन है तो ये फील्ड है ऐसा, और ये अगर प्लेन है तो ये फील्ड बन जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ से कितना मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा 0, क्योंकि ये अगर प्लेन है, ये प्लेन, ये नॉर्मल है, तो ये बी है, ये ए है, थीटा 0 आ गया। ये अगर प्लेन है ऐसा तो ए यहाँ पे आ गया, बी भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी थीटा 0 आ गया, तो थीटा 0 मिल गया। ओके, हाँ, हैविंग रेजिस्टेंस आर भी दिया है, आर कितना दिया है, 0.01 ओहम दिया है। ओके, बिकॉज ऑफ पावर फेल्यूर द फील्ड डिके टू 1 टेस्ला इन टाइम 10⁻³ तो इसको लिखते हैं P1, और B2 कितना हुआ, 1 टेस्ला, और टाइम कितना दिया है, 10⁻³ सेकंड। व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस इन हर नेकलेस? इट्स वेरी सिंपल। पहले हम क्या करते हैं, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ करके लेते हैं, d phi by dt। मैग्नीट्यूड है, इसके लिए साइन का जरूरत नहीं। ओके, तो अभी d phi by dt कैसे लेंगे, phi इज इक्वल टू NBA, n तो 1 है और cos, तो phi इज इक्वल टू डायरेक्ट BA लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो d phi by dt कैसे हो जाएगा, dB by dt इंटू a तो कांस्टेंट रह जाएगा, dB by dt मतलब B2 माइनस B1 अपॉन T इंटू a। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, B2 माइनस B1 अपॉन T इंटू a लिखूंगा। तो E कितना मिलेगा, B2 1 माइनस 2 अपॉन 10⁻³ इंटू एरिया दिया है 0.01। ऑफ कोर्स ये माइनस आएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिख के लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड आएगा, ये -1 आ गया, तो ये 1 इंटू 10⁻, सॉरी हाँ ये यस, ये 0.1, मतलब ये 0.1 ही रखते हैं, और ये इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 3 बन जाएगा। तो ईएमएफ मेरा बन गया 10 वोल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बन गया 10 वोल्ट। अभी H इज इक्वल टू VI इंटू T, बराबर, ये कर सकते हैं आप। और करंट दिया है उन्होंने, करंट दिया है क्या, ना 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 ना, ओके, करंट दिया नहीं है, टोटल हीट प्रोड्यूस दिया है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज दिया है। ओके, टाइम दिया है, और हाँ, VIT I इज इक्वल टू, हाँ I इज इक्वल टू, यहाँ पे I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, सो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R, ये करेंगे इंटू T। तो H कितना बन जाएगा, ये V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, तो V स्क्वायर 10 इंटू 10 अपॉन R कितना 0.01 इंटू 10⁻³ तो ये बन जाएगा 100 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻³। तो हीट ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर ना, V तो ये 10 बन गया है। ओके, ये गलत नहीं हुआ ना कहाँ पे भी, ओके R 0.01, R देखते हैं फिर से, क्योंकि अपना आंसर 10 जूल दिखा रहा है, मेरा 1 जूल आ रहा है, 10⁻³ ये आ गया। हाँ, ये 10⁻³ ना, तो 0.1 आएगा, बराबर है 0.1 अपॉन 0.01, तो अभी 0.1 अपॉन 0.01 हीट, तो कितना आ जाएगा, ये 10⁻1 अपॉन 10⁻², मतलब 10⁻1, मतलब H आएगा 10 जूल, बराबर आ रहा है। माई आंसर विल बी 10 जूल। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है इन अ क्लोज्ड लूप। सो प्रॉब्लम नंबर 18, इन अ क्लोज्ड लूप
which has the same inductance but some inductance but negligible resistance, uniform but time varying magnetic field is applied directed into the plane. Variation of the field is shown. वेरिएशन ऐसे दिया है आपको, वेरिएशन फील्ड का कैसे दिया है, ऐसे दिया है, और यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे B दिया है और यहाँ पे T दिया है. ओके, देन EMF इंड्यूस्ड इन द लूप. ओके, तो हम क्या करते हैं, EMF निकाल के लेते हैं, है ना. ओके, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. तो फाई कैसे करेंगे, फाई लेने का बी ए, तो डी फाई बाई डी टी कैसे आएगा आपका, डी फाई बाई डी टी कैसे आएगा, ए इंटू डी बी बाई डी टी. अभी डी बी बाई डी टी इस ग्राफ के लिए फॉर बी वर्सेस टी ग्राफ, डी बी बाई डी टी क्या आएगा आपका, डी बी बाई डी टी आएगा आपका स्लोप आएगा. तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं, डी बी बाई डी टी इंटू ए, तो स्लोप इंटू एरिया माइनस ऑफ दैट, सो E विल बी माइनस A इंटू स्लोप. ओके, और कब पूछा है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. यहाँ पे ऑप्शन दिया उसमें से स्लोप एट t इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2, यहाँ पे अगर मैंने स्लोप निकाला तो कितना आएगा, ये ऐसा है ना ग्राफ, तो स्लोप विल बी 0, है ना. तो पहला जो ऑप्शन है EMF इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 2, सो ऑप्शन A विल बी ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन A करेक्ट आएगा. दूसरा, डायरेक्शन ऑफ EMF इन द लूप विल चेंज एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. या यहाँ पे पहले ऐसे जा रहा था, अभी फील्ड चेंज हो गया, तो ऑप्शन आपका C भी करेक्ट होगा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू मे आस्क मी पर्सनली. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 19. प्रॉब्लम नंबर 19 में क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 19 में, हाँ अगर आपको थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो एक एक प्रॉब्लम को आप पॉज करके फिर से देख सकते हो. मैं क्यों थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा हूँ, मतलब इन द 1 आवर इट विल बी बेटर फॉर अस, वी विल सॉल्व एटलीस्ट 20 प्रॉब्लम्स. अभी मैंने 18 तक आ गया हूँ, और 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और बस करेंगे. 19 क्या है, तो आप एक एक प्रॉब्लम को पॉज करके देख सकते हो. एनी डाउट इज देयर, यू मे आस्क मी एट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम. मैग्नेटिक फील्ड गिवन एज B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कितना दिया है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको, कितना दिया है, 0.2 t माइनस 0.2 t माइनस 0.05 t स्क्वायर. ओके, इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू, इसको t लिखते हैं, टेस्ला, टेस्ला. ओके, डायरेक्टली परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सर्कल कंटेनिंग 25 टर्न्स, n दिया है 25 ऑफ रेडियस, तो r दिया है 1.8 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ओके, उस टोटल रेजिस्टेंस R दिया है, कैपिटल R 1.5 ओहम. पावर डिसिपेटेड P भी दिया है एट 3 सेकंड, ना पावर डिसिपेटेड पूछा है, एंड T इज इक्वल टू 3 सेकंड दिया है, एकदम सिंपल है. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले निकालने का अपना B दिया है, तो पहले निकालने का E इंड्यूस्ड EMF विल बी d phi by dt माइनस, तो माइनस d by dt ऑफ phi. तो phi तो दिया नहीं है, लेकिन अपन को B और A दिया है, ये B दिया है और ये R दिया है. तो पहले क्या करके लेने का, ठीक से देखो. अभी पहले phi लिख के लो, NBA. अगर phi NBA है तो d phi by dt कितना आएगा, n और a कांस्टेंट रहेगा, na इंटू डी बी बाई डी टी. तो यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ, d phi by dt मेरा कितना आएगा, n a इंटू डी बी बाई डी टी, मतलब इसका डेरिवेटिव 0.2 इंटू 1 माइनस ये 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.1 t, तो d phi by dt कितना बन गया मेरा, d phi by dt. अभी n का वैल्यू डालो, n 25, a को पाई r स्क्वायर डालो, और ये कितना बन जाएगा 0.2 माइनस 0.1 t बन गया. तो ये कितना बन गया 25 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 1.8, तो 1.8 इंटू 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 0.2 माइनस 0.1 t. अभी t भी दिया है आपको, 3 सेकंड दिया है, तो अभी d phi by dt पूरा करके लेते हैं. Therefore E will be equal to d phi by dt कितना आएगा 25 पाई
मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻4 आएगा अभी ये, इंटू 0.2 माइनस 0.1 इंटू 3, तो ये कितना आएगा? ऑफ कोर्स माइनस, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस 25, 18 का स्क्वायर कितना? आई थिंक 364 ना, 324, ओके। सो इंटू 3.24 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4, ये कितना हो जाएगा? 0.3.2, मतलब ये -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो अब ये कितना बच गया? अप्रोक्सीमेटली करता हूँ इसको, ये पाई को 3 लेता हूँ, इसको भी 3 लेता हूँ, 3 3 9, 25 9 225, अप्रोक्सीमेटली 225 टू 10⁻⁻4, ये आ गया मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अभी पावर पूछा है, पावर डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेटेड के लिए वर्क अपॉन टाइम बराबर, तो ईएमएफ वी आई अपॉन टी, वी आई अपॉन टी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आई दिया है क्या? देखते हैं, आई दिया नहीं है, लेकिन अपन को बी का इक्वेशन दिया है और रेजिस्टेंस दिया है ना, तो आई इज इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू वी आई टी। ओके, वी आई टी नहीं, एक मिनट, ये हो गया आपका। तो E कितना मिल गया अपन को? तो E अपन को मिल गया 225 टू 10⁻⁴। नाउ पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सो यहाँ पे पावर विल बी V मतलब E इंटू आई मतलब E अपॉन R, तो ये बन जाएगा E स्क्वायर अपॉन R, तो E स्क्वायर 225 मल्टीप्लाइड बाय 225 10⁻⁻4 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन R, R कितना दिया है बेटा? R देख लेते हैं कितना दिया है, R दिया है आपको 1.5, तो अभी देखो और यहाँ पे कहीं पे भी ये हाँ बराबर है 225, सो 1.5 यहाँ पे, ये इसको क्या करते हैं, इसको 15 कर देता हूँ, 15 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि यहाँ पे ये 15 बन जाएगा, ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, 10⁻⁻7 बन जाएगा। अभी 15 से मल्टीप्लाई करो, 75, 7 कैरी 37, 3 कैरी 37, ओके। सो ये कितना आ रहा है? यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3775 इंटू 10⁻⁻6, तो ये थोड़ा सा माइक्रो में ये आ रहा है, इसका थोड़ा ये चेक करो, खाली सेंटीमीटर दिया है ना, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट किया मैंने, हाँ तो वो किया पाई आर स्क्वायर, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करो, -4, ये -4 आ गया, ये 3.14 3.2, अरे हाँ ना ये बराबर है, इंटू 10⁻⁴, ये 8 आ गया, इसको 7 किया मैंने, तो 250 और रेजिस्टेंस कितना दिया? 1.5 दिया है ना, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, ये आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रोजूल, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 जूल, तो ये आपके लिए मैं रखता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ, चेक द कैलकुलेशन एंड जस्ट टेल मी वेदर इट इज कमिंग और नॉट, ओके। बाकी सब तो ठीक है, आपको तो मैंने फॉर्मूला दिया है, आप अभी उसमें फॉर्मूला में वैल्यू वगैरह डाल के मेरे को बताओ खाली ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 20। सो प्रॉब्लम नंबर 20 क्या दिया है देखते हैं, ओके। अ सर्कुलर रिंग ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, सर्कुलर रिंग का डायमीटर 20 सेंटीमीटर आपको दिया है। प्रॉब्लम नंबर 20, डी दिया है 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर कितना आएगा? 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर, ओके। रेजिस्टेंस 0.01 ओहम दिया है। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द रिंग? डेल्टा क्यू पूछा है, डेल्टा क्यू मतलब इंड्यूस चार्ज पूछा होगा। If it is rotated from position perpendicular to uniform magnetic field B2 Tesla to position parallel to the field, perpendicular to parallel, मतलब हाँ, मतलब
परपेंडिकुलर टू पैरेलल, मतलब ये ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन, अब ये पैरेलल मतलब ऐसे बन जाएगा, मतलब एंगल थीटा लेने का, थीटा 1 0, थीटा 2 90। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई विल बी बी ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो बी ए इंटू 0 माइनस 1, तो ये बन गया माइनस बी ए फाई। हाँ, तो अभी क्या पूछा है आपको, इंड्यूस्ड चार्ज, ओके, ये डी फाई बन गया, सॉरी डेल्टा फाई, क्योंकि यहाँ पे किया डेल्टा फाई, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाई अपॉन आर। डेल्टा फाई कितना आ गया, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी ए, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन आर, तो बी कितना दिया है, तो डेल्टा क्यू, बी कितना दिया है आपको, बी 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 2 टेस्ला, 2 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन आर कितना दे 0.01। अभी इसको करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 आर स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.01, 0.01 और ये कैंसिल हो जाएगा, 6.28 आ जाएगा, 6.20 आ गया। Okay, so in this way students we have solved the problems regarding to the electromagnetic induction. I will suggest you to go through each and every problem and try for your practice. Okay, and if you are having any doubt, any query, feel free to ask me, there is no problem. And on 26 now after 2-3 days your exam is there, so I'll suggest you to be ready with your exam. Tomorrow we will come with some problems from magnetism. Okay, so today we shall stop here. That's all, that's fine for today. Keep your practice on, stay home, stay safe, stay tuned with physics. Thank you, thanks a lot, bye bye.